آج کا جو پیغام ہے، خدا کے راست باز ٹھہرائے ہوئے کون ہے؟ خدا کے راست باز ٹھہرائے ہوئے جو ہے وہ کون ہے؟ ہلیلویا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، بیٹے کامران کے ساتھ مل کے پڑھیں گے رومیو 8 باب کی 12 سے 17 تک۔ جی آج کی خوبصورت زندہ پاک کلام میں جی رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 8 باب اس کی 12 ہے۔ جی بس اے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں، بس اے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں، مگر جسم کے نہیں، جسم کے مطابق زندگی گزاریں، جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نست و کیا کرو گے؟ نست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ خوبصورت بات کیا ہے؟ جسے یعنی ابا اے باپ کہہ کر ہم پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ سنیں بھائی، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، شرط ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں جی تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آمین۔ تاکہ اس کے ساتھ کیا پائیں؟ دکھ بھی اٹھائیں اور جلال بھی پائیں۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھیں، دکھ بھی اٹھائیں اور جلال بھی پائیں۔ کیا راست باز جو ہیں، جو خدا پرست ہیں، جو راست باز برگزیدے ہیں، کیا وہ سلامتی سے زندگی بسر کریں گے؟ ہاں جی، کسی راست باز کو آرام سے زندگی بسر کرتے ہوئے مجھے بتا دیں، کسی راست باز کو، کیونکہ وہ زمین پر دکھ اٹھائے گا، زمین پر ستایا جائے گا، زمین پر اسے برا بھلا کہا جائے گا، زمین پر اس پر الزام لگائے جائیں گے، زمین پر اسے آوارہ بھاگنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا۔ مراد یہ ہے کہ اسے دور دراز جانا پڑے گا، اسے کال بھی برداشت کرنا پڑے گا، کال کے دن بھی، دکھ کے دن بھی، مصیبت کے دن بھی، اور ان سب باتوں کو جو اس کے خلاف ہمیں برداشت کرنی پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 12ویں آیت ہمیں سکھا رہی ہے، اور رومیو کے باب 8 میں کیا بتاتی ہے؟ بس ہے بھائیو ہم قرضدار ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ قرضدار ہیں کہ نہیں؟ جسم کے قرضدار ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ بھائی۔ ہاں، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں۔ کس کے قرضدار ہیں پھر؟ روح کے قرضدار ہیں۔ سب سے کہہ رہا ہوں، روح کے قرضدار ہیں ہم، جی کہ نہیں؟ ہے نا؟ کیا روح کے قرض ہے آپ پر؟ روح کو نہ بجاؤ کہ بجا دو۔ تسلیتوں کا خط کہتا ہے روح کو کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نکلے، نہ گالی، نہ فریب، نہ جھوٹ، نہ ریاکاری، نہ ایسی بات ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اب روح کی کیا بات ہے؟ روح چاہتا ہے آپ عاجز ہو، روح چاہتا ہے آپ دعا کریں، روح چاہتا ہے آپ روزہ رکھیں، روح چاہتا ہے آپ خدا کے کلام کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم تو روح کے قرضدار ہیں، ہم تو روح کے قرضدار ہوتے نہیں، روح کو اپنا قرضدار بناتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں مینوں بھی روح نے دسیا سی۔ کی دسیا ہی تینوں؟ پتا تینوں ہے کو نہیں تو کہہ چڑھنا نہیں۔ جو بائبل کہتی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جسم کے مطابق ہم زندگی، اب جسم کے مطابق ہم کیا نکالیں مجھے بتائیں۔ غلطیوں
5 बाब की 17, 18, 19, 20 जल्दी से जो निकाल के पढ़ सकते हैं। अब हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे हैं कि नहीं? पढ़ दीजिए गलातियों 5 की 17 जी। क्योंकि जिस्म किसके खिलाफ है जी? बोलते जाए भाई, किसके खिलाफ है? ये पढ़ना नहीं तो फिर सुनो। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता हम जिस्म की बात कर रहे हैं। अब जिस्म रूह के खिलाफ क्या करता है? ख्वाहिश करता है, क्या करता है? ख्वाहिश करता है। और रूह जिस्म के खिलाफ, और रूह जिस्म के खिलाफ। और ये दूसरे के क्या है? मुखालिफ है, मुखालिफ है। ताकि जो तुम चाहते हो ना करो। हाँ, आगे। और अगर तुम रूह के हदायत से चलते हो। अब रूह की ख्वाहिश क्या है? अब रूह के करदार है। और रूह की ख्वाहिश क्या है कि ये बदन की चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपको उनसे परहेज करना है। पढ़िए जल्दी से। रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं, इसके मुताबिक नहीं रहे। नहीं। अब शरीयत क्या है? अब हम शरीयत का नहीं, शरीयत के मुताबिक मोहित है। वो किस बात की शरीयत की मुताबिक कह रहा है आपको? वो कुर्बानी नहीं कह रही, इसके मुताबिक नहीं है। बाप रे, आपकी कुर्बानी हो चुकी है, आपका कफारा हो चुका है, आपके लिए कोई बलिदान हो चुका है, वो यीशु मसीह है। लेकिन शरीयत अच्छी और पाक और खूब है, ये कहती है कि तू ऐब जोई, तू चोरी, तू गैर मबूदों के आगे, तू मेरे सिवा किसी और को सजदा। हम गैर मबूद की परस्तिश भी करें और अपने मबूद की भी परस्तिश करें, और हम दो तरह के ज़हन और ख्याल लेके चले, तो क्या हम खुदा के रास्तबाज लोगों में शामिल होंगे? वो लोग होंगे जो आसमान की बादशाही में उसके जलाल के अंदर दाखिल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तो पता नहीं कौन ठेकेदार है जो कहते हैं जो नशे में मार दे, जो गुनाह में मार दे, जो लड़ाई में मार दे, जो आग में डाल के मार दे, जो पानी में डूब के मार दे, और जल्दी से कहते हैं मैं इसे बाप इब्राहिम की गोद में, चंगी गोद में तू तो बिस्तरे लवाए। भाई ये कोई क्वार्टर नहीं है, ये 5 स्टार होटल नहीं है, ये पकीज़गी की जगह है, ये खुदा के ज़ुहूर के अंदर जगह है, उसकी हजूरी में है, वो आपको अपने पास लाता है। लेकिन जब हम रास्तबाज नहीं हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग नहीं हैं, तो फिर हम रास्तबाज होने के लिए बुलाए भी नहीं। क्या क्या कहते हैं आगे? अब जिस्म के काम तो जाहिर है। हाँ जी, सारे गिनती करो भाई। हरामकारी, तुसी भी गिनती करो, तुसी भी हरामकारी, जल्दी पढ़ जा। नपाकी, शहवतपरस्ती, बुतपरस्ती, जादूगरी, अदालतें, झगड़ा, हसद, तफरीके, बिदअतें, जुदाइयाँ, नशाबाजी, नाच रंग, और कितने हो गए? और उनकी मानिद। और कितने हो गए भाई? हैं? फिर एक बारी पढ़ लो, 15 तो नहीं कितने हैं? हरामकारी, शहवतपरस्ती, बुतपरस्ती, जादूगरी, अदालतें, झगड़ा, हसद, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, और प्लस कितने हो गए? कितने हो गए हैं? बशर साहब कितने हो गए? बहुते हो गए ने। एक कितने? 15 प्लस होंगे ने। मैं तो स्कूल में एक बार गिन लो, जेकर तुसी 16 कर दे, 15 कर दे तो 45 नहीं, तो 17 कर दे तो फिर उत्ते टाइम टुट जाता है। साथी 21 हो जाते हैं, 51 बन जाते हैं। अब ये काम क्या आपको खुदा के रास्तबाज लोगों में शामिल होने देंगे? क्या ये खुदा के रास्तबाज लोगों में दाखिल होने देंगे? नहीं। क्यों नहीं होने देंगे? इसकी बड़ी वजह है कि हम जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, ना कि हम दुख और दर्द को बर्दाश्त करें। इस बहन के लिए मैं दुआ कर रहा था, वो भी बहन उम्मीद से थी, इस एरिया से दूर की बात है, तो उससे मैंने कहा बहन ये खुदा का कलाम है, ये तुझे पूरा करना पड़ेगा, दर्द सर के बगैर तू औलाद पैदा, ये कलाम खुदा है, ये खुदा के कलाम की गहराई है। जब आप इसमें नहीं जाएंगे आप कैसे ऊपर आएंगे? और बाइबल में क्या सिखाती है? रोमियो 8 की
18 سے 25 کیا بتاتی ہے؟ جلدی سے پڑھیے گا، کیا لکھا ہے 18 آیت میں؟ کیونکہ میری دنس میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال اس زمانے کے، سنو بھائی، اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس کے جلال کے، بھائی یہ بھی پڑھیں، کس کے؟ اس کے جلال کے، یہ دکھ درد اس کے مقابلے میں کچھ ہے؟ اس کے جلال کے مقابلے میں ہے کچھ؟ ان کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، آپ کو نہیں آئی؟ پھر پڑھیں اس آیت، کیونکہ اس کی دانست میں اس زمانے کے دکھ درد، او بھائی زمین پہ جو جسم میں آپ دکھ درد برداشت کر رہے ہیں، آگے وہ نہیں لائق نہیں ہے، اس لائق نہیں کہ اس لائق ہے نہیں کہ اس کے جلال کا مقابلہ کر سکے۔ اب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ادھین آئیے، ادھین کو نہیں آئی؟ جو دکھ درد ہم زمین پر بسر کر رہے ہیں یا گزار رہے ہیں یا مل رہے ہیں یا سہ رہے ہیں، کیا اس کے جلال کا مقابلہ کر سکتے؟ اس کے جلال کے مقابلے میں کچھ ہے؟ سان کر دیتا ہوں، اب سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ زیرو ہے، اس کا جلال اتنا ہے کہ یہ رتی بھر بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ جب آپ اس دکھ درد سے نکلیں گے، آپ مستقبل میں اس کے جلال میں داخل ہونے کے لیے ان راست بازوں میں شامل ہوں گے جو اس کا جلال دیکھیں گے اور اس کے جلال میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہلیلویا۔ اب پڑھیے آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں اس کے ظاہر ہونے کی راہ کمال مخلوقات خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ کون ہے بیٹے؟ وہ کون ہے بیٹے بھائی؟ نہیں یقین؟ جتنوں نے اسے وہ پرائے ہو گئے۔ نہیں، پورا کرو پھر۔ ہاں جی خالد صاحب، جتنوں نے اسے وہ خدا کے اچھی بولو یار ہے، ابے کو شاہ لانی ہے تو پولی تھی بول دیو، آپ کر کے بول ابا دے نہیں مینوں لے کے دے، مینوں نہیں پتا، مینوں چاہی دی ہے، یہ تو لینی ہے تو لے کے چھڑنی ہے۔ کیوں جی مسا صاحب؟ میں لینا ہے گوگل پکسل ہی لینا ہے، پائیں 1.25 لاکھ دے تو پائیں 1.5 لاکھ دے، وہ پہ دینا جائے، اگلے لے لیں۔ فرزندیت جو ہے یہ کیا نہیں لیتی؟ باپ سے کیا چیز نہیں لے سکتی؟ بولو بھائی۔ اور فرزند جڑے نے تیاں پتر نے پیو کو کی نہیں لے سکتے؟ تو جے مرضی کرو گے پوری تو پھر لاؤ گے نا، تو جے نہیں کریں گے تو کس طرح لاؤ گے؟ نے کہا بتیرے خداوند کہنے والے میری بادشاہی میں ہو جائیں گے۔ صحیح کرو پھر والا داخل کیوں؟ یہ گل ہے، یسوع مسیح تو صدقے جاواں تے بھلے شاہ واری میں دعا نوں نہیں چھڈیا، میں دعا نوں خوش رکھے۔ انسانی زندگی، انسانی خواہشات، اس سے بچیں۔ دنیا بہت ساری ایسی کر رہی ہے، بہت سارے خاندان گھرانے، آپ باہر نکلے، آپ جائیں، ایسی ایسی بستیاں لوگ ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن خدا کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ بائبل ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ آگے پڑھیے ذرا۔ اس لیے مخلوقات کیا کر رہی ہے؟ بطالت کے اختیار میں کر دی گئی ہے، اپنی خواہش خوشی سے، ہاں، بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے، کس سے بھائی؟ فنا کے قبضے سے، کس کے قبضے سے؟ فنا کے قبضے سے، کس سے بھائی؟ کس کے قبضے سے؟ فنا کے قبضے سے چھوٹی ہے، چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے۔ فنا کے قبضے سے چھوٹ کر کس کے؟ خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی، خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں کیا ہو؟ داخل ہو جائے۔ ہو جائے گی کہ ہو گئی؟ ہیں؟ ہو گئی کہ ہو جائے گی؟ کی لکھیا پڑھو ہاں،
दाखिल हो खुदा के फर्जंदों के जलाल की आजादी में दाखिल हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी। तैयारी करो, करनी है कि नहीं? बोलो भाई, इंजी करनी है, अजरा टाइम इंजी करनी है, हैं? बोलो भाई, हूं की हो गया, इंजी की तैयारी करनी है। चलो 10-20 मिनट का आधा घंटा तो हो गया, तो 1.5 घंटा तो घंटा फिर हो जाएगी। खाना खोल देना जी रात 9 बजे, मैं 9 बजे पेंट इस्त्री करा। मुमकिन है? मुमकिन है कि नहीं? सही लफ्ज मुमकिन है, मुमकिन है ऐसे? मुमकिन है कि नहीं? क्यों? लभने कुछ नहीं। भाई साहब बह जाओ फिर थोड़ी देर देखते तो मेहमान ने जो लभदा भी खा लिया। हाजी साहब 2 घंटे पहले तैयारी करनी। जी मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, बस मैं तो दरवाजे पर आ गया हूँ। आप इस बात को देखें कि आपने दाखिल होना है और आपने तैयारी करनी है। और बाइबल हमें क्या सिखाती है? पढ़िए जरा आगे। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराती है। किस वजह से कराती है? किस वजह से दर्द में है? किस वजह से परेशानी में है? किस वजह से कराती है? किस वजह से परेशान है? वो दबी हुई है बोझ के नीचे। वो कहती है हमारी जान यहाँ से छुड़ाओ और हमें अपने जलाल में दाखिल जल्दी कर खुदा। आगे क्या लिखा है? पढ़ते जाए जल्दी से। दर्जदा में पड़ी तड़पती है ना फकत बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले आप अपने बातन में बढ़ाते हैं और लेपालक होने यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली। उम्मीद के वसीले से क्या मिली? निजात मिली। आगे मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाएगी फिर उम्मीद कैसी रहेगी? तो फिर उम्मीद कैसी रहेगी? क्योंकि जो चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। आगे क्या लिखा है? 26 आयत मूसा शाहिद पढ़ते जरा। 26 आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है? क्या करता है भाई? मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं करते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर कर शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आगे और दिलों को परखने वाला रूह क्या नियत है? आगे क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। किसकी करता है? ਤੁਹਾਡੀ तो शिफायत करता है। ਤੁਹਾਡੀ की करता है? दुख दर्द बामकाबल मुस्तकबिल का जलाल। आप दुख में पढ़ेंगे नहीं तो जलाल में कैसे दाखिल होंगे? मखलूकात राह किसकी देख रही है? किसकी राह देख रही है? अभी बताया भी था, अभी मैंने हवाला भी दिया था। हाँ जी, कौन बोले? खुदा के फर्जंदों की राह देखती है, खुदा के बेटों की राह देखती है। मखलूकात वो चीजें हैं जो दुनिया में हर चीज, छोटे कीड़े बड़े हर चीज है जिसके अंदर जान है, वो खुदा के बेटों की राह देखती है। मकसद क्या है इनका? ये कि ये आजादी पाए। मकसद क्या है कि खुदा के फर्जंद आजादी पाए। और फिर आजादी के लिए आपको दुख दर्द से गुजरना पड़ेगा। और जब आप दुख दर्द से नहीं गुजरते तो आप नए बदन को कैसे हासिल करेंगे? एलिया सुख च रहा सी, इब्राहिम सुख ना जिंदगी बसर की है, शैमूल ने सुख ना बसर की है,
दाऊद ने सुख ना बरस की थी यसु मसीह ते बड़े आराम ना बैठा नहीं कुर्सी ते हैं कहंदा मैं मालक हां लोकी वट्टे भी मारदे हन ते लोकी धक्के भी देंदे हन ते लोकी ये भी आंदे ने खाओ ते शराबियां दा बोल छड़ो जादूगर भी क्या आंदे ने ये तो बाज़ुल के सरदार उसकी मदद से बदलुओं को निकालता है और की नहीं क्या तानू जब कोई कहता तो बर्दाश्त कर लिया कर तू बड़ा बड़ा देखिए मैं तुम बता रहा छोड़ दे इसको क्या नहीं उसके जो लफ्ज है उसकी सोच की अक्कासी करें कि ये आपके लिए क्या रखता है आप उसे छोड़ दें आपको कोई हाजी साहब मैं देखा तो बहुत हाजी बन गया या बंदा कह दे मैंने नहीं पता तो बहुत हाजा है छोड़ दें आप इन बातों हम इन बातों के अंदर रहकर करा रहे हैं तड़प रहे हैं ये नहीं तड़प रखते कि हम खुदा को खुश करें ये तड़प नहीं रखते हैं कि हमने खुदा को जवाब देना है और मेरी बात याद रखें जब आप नए बदन के लिए दुख दर्द इस्तेमाल करें आप कुछ नहीं उसकी वजह क्या है कि मखलूकात को फना के कब्जे में क्यों कर दिया वजह क्या थी कब्जे में क्यों किया जो हम पढ़ रहे हैं ताकि फना का जो बदन है जिस पर कब्जा है वो बका के कब्जे में दाखिल हमेशा की जिंदगी में किसकी में हमेशा की फर्जंदियत में राष्ट्रवादी में और इसीलिए तो लिखा है वो कमजोरी में पाक रूह के वसीले से हमारी क्या करता है और अगर वो मदद करता है तो मकसद क्या है कि रूहुल कुद्दुस खुदा बाप की मर्जी को जानता है इसलिए वो हमारी मदद करता है कि ताकि हम जान सके कि बाप हमसे क्या चाहता है और उसकी मर्जी हमारे लिए क्या है ताकि हम उस जलाल में दाखिल होने के लिए ठीक तौर पर रास्तबाज बन जाए ठीक तौर पर वजह क्या है कौन है रास्तबाज जरा पढ़िए आप 28 साल क्या कहती है और हमको मालूम है कि हमको मालूम है सुनो भाई सारे देख सकते हैं मुझे कि सब चीजें मिलकर ऐसे करो जरा पता चले तानू मालूम है कि नहीं हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं किना ले भाई फिर को बहुत जरा मैंने बात समझ नहीं आई कि उतनी बार कढ़िया तुसी भी इत्थे ही खुदा से नहीं समझ आ रही क्या है हाँ सब चीजें मिलकर बोल चलो मैं नहीं ताड़ा दिल नहीं करता पानी लेके आना मैं थोड़ी सारे सकंजी लेके आना ताकि पियो ताकि फरता आदम हो जाए हमको मालूम है पैंट छपाना हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों मोबाइल ना खेडन वाले नहीं कारपेट ना खेडन वाले नहीं दूजे दे जाने ना खेडन वाले नहीं इधर उधर ध्यान करने वाले नहीं कार सुते रहने वाले नहीं लापरवाही करने वाले नहीं ते खेडन वाले नहीं भलाई पैदा करेगी हैं किन के लिए पैदा करेगी खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करेगी आगे यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए क्योंकि जिनको उसने बुलाया आगे पढ़ते जल्दी पहले से मुकर्रर किया जल्दी पढ़ते जाए मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों हाँ जी
ताकि वो बहुत सारे भाइयों में परोठा ठहरे परोठा ठहरे आगे और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया हाँ। उनको बुलाया भी हाँ। और जिनको बुलाया हाँ। उनको रास्तबाज रास्तबाज भी ठहराया और आगे जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। शुक्रिया। अब जो बात ये पौलुस रसूल ने कही कि हम दुख दर्द सहें, पढ़े जरा 30 आयत क्या कहती है जल्दी से। अब जलाल में दाखिल होना है, दुख दर्द सहना कि नहीं? और जिनको उसने देखो ना यार, जी। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया आगे उनको बुलाया और जिनको बुलाया आगे उनको रास्तबाज भी ठहरा आगे और जिनको रास्तबाज ठहराया हाँ। उनको जलाल भी बख्शा। अब पढ़े 35 आयत। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? लैपटॉप दे मोहब्बत से जुदा करेगा बिजली। मुसीबत या तंगी या जुल्म या एक मिनट कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? लैट पादी साहब कपड़े इस्त्री नहीं सुना मैं तो गिरजे नहीं सुना पानी नहीं सादी तो की करता मैं आगे लैंड में कि नहीं हैं? आगे कि नहीं नाश्ता नहीं किया गैस तो गया आटा नहीं गुजा तंदूर बंद से नहीं यहाँ पढ़िए जल्दी कीजिए मैं क्लियर करूँ जल्दी कीजिए कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? सुने सबसे पूछूंगा जल्दी से। मोहब्बत या सॉरी मुसीबत 100 रुपया देता दें मुसीबत लफ्ज़ है कोई बात नहीं कोई बात नहीं या तंगी मुसीबत या तंगी या जुल्म या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार चुनाचे लिखा है कि हम दिन भर हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं हम दिन भर तेरी खातर जान से मारे जाते हैं। ज़बूर 44 निकाले हम दिन भर ये कहाँ लिखा? पौलुस रसूल ने तो इतनी बड़ी गहरी बात कर दी है। ये उनके लिए जो रात भर ठहरे हुए लोग हैं वो कौन है? ये लोग हैं जो दुख दर्द सहेंगे जो बर्दाश्त करेंगे और जो शादमान होंगे। भाई साहब पढ़े 44 ज़बूर की क्या लिखा है? बल्कि हम तो दिन भर कितने बार दिन भर तेरी ही जान से मारे जाते हैं। तेरी खातर लिखे है तेरी खातर जान से मारे जान से मारे जाते हैं। इतना वर्ड छड़ दे कोई आगे कतल कर छड़ दे ਉਂਝ नहीं करता गल्ला ना तुहानू कतल कर छड़ दे गल्ला ना तुहाडी जान मां भैन धी सब कुछ मार मुक के परा कर दे। नहीं आप इस बात से ना घबराएं आप खुदा के लोग हैं। ये पौलुस रसूल उस बड़े बेद को जो दाऊद की मार्फत था कि हम तो दिन भर तेरी खातर जान से मारे जाते हैं। कदे नस के बेचारा पहाड़ ते जांदा ही कदे गारां च छुपदा है। पहले खुदा के हुजूर वो सजा पाया ना गुनाह के बायस जो गलती हुई इकरार के बायस फिर अपने बेटों के बायस अबिस्लूम के बायस जो वो बादशाह बनने के लिए अदालत करने के लिए बाहर बैठ जाता और लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहा था और खुद जाकर एक बड़ा जश्न करके बादशाह बनने के चक्कर उसके खतरे से फिर लोगों के खतरे में फिर सौल के खतरे में कहाँ कहाँ नहीं बेचारा दिन भर जान अपनी जान बचाने के लिए दुख तकलीफ में भागा। और आपको भी भागने की जरूरत है आपको भी जरूरत है। आगे क्या लिखा है पढ़िए भेड़ों की मानद हम ज़बा होने वाली भेड़े समझे जाते हैं और ज़बा होने की गल दूर है तो ही कह दी वो की माने डांट नहीं बर्दाश्त करते। अच्छा कर ले अगली बारी मैं जो तो दुआ आमीन करेगा ना देगा। अब जब आप बुलाए गए जल्दी पढ़े सवाल को क्लियर करें। खुदावन जाग तो क्यों सोता है? बस आप वापस जाएं रोमियो के साथ में जल्दी करें 3 मिनट है मेरे पास जल्दी से। रोमियो 8 की 37 आयत क्या कहती है? मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे क्या की भाई क्या की भाई क्या की
आगे हमको फतह से भी बढ़कर हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, हासिल होता है, क्योंकि क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, हाँ? उससे हमको ना मौत जुदा कर ना मौत जुदा कर सकती है, ना जिंदगी, ना जिंदगी, ना ना फरिश्ते, फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना हाल की, ना इस्तकबाल ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना कोई चीज ना हमें- हस्ती, ना कोई और मखलूक। हमें अब जिनको बनाया है, मेरी तरफ जरा रहिए, वो जिनको बुलाया गया है बाइबल में बताती है कि रास्तबाज कौन है, वो जिन्हें पहले बुलाया गया है। रास्तबाज कौन है? वो जिन्हें पहले, और जिनको बुलाया है उसे जाना भी है। जिसे बुलाया उसे जाना भी है कि नहीं? दसो में नहीं समझ आई। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਜਾਣੋਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? आइए आइए आप यहाँ, आप ड्राइंग रूम में आइए, आइए यहाँ एसी लगा है, यहाँ पे आइए, आप मशरूबात पिए, नहीं पानी ना पिए, आप जूस पिए। जब आपको बुलाया है तो आपको उसने जाना भी है। जब आपको बुलाया है और क्या किया है? जाना भी है। मेरी तरफ से जाना भी है, और जिनको जाना है उनको रास्तबाज भी ठहराया है। समझ आइए? जिनको जाना है उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया, तो जो करें उनको जलाल भी बख्शा है। हालेलुया। और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा है, और जिनको जलाल में दिया है उनको जलाल में दाखिल भी करता है, ताकि हम उसके क्या हो? बेटे के क्या हो? हम उसके बेटे के। इस सारे काम का मकसद क्या है? कि खुदा हमसे मोहब्बत, खुदा फर्जंदों से मोहब्बत, खुदा रास्तबाजों से मोहब्बत, खुदा रास्तबाजों को जलाल में दाखिल करता है, करेगा, और आप तैयारी करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के सिलसिले से बरकत मिले। आमीन। आइए सर को झुकाएं।